So Divya, if there is question for the event, vital event, okay, in the in there you can write this all things. Like first one is about the Sensex, second one is the registration of vitals, Yes, sir. third one is the sample registration system. Those you told me about last lecture about the sample registration system Yes, accordingly to the state by with the 6 months. Okay, and yes, then fourth one is the notification of disease. I think the fourth one is the notification of disease. Fifth one is the hospital record. Sixth one is the disease register. Seventh is the record linkage. And next eighth one is the epidemiological surveillance. Okay. Then also there is the environmental health, manpower statistics, and population survey. So this is your population survey and some static related health. So here what we write, if there is a question is came about the vital event, about the vital event, okay. So you yes, sir. should have to write about the uh, uh, 4 5 line about each and all events. First one is the Sensex. Last time I described very Yes, sir. clearly the Sensex, because the Sensex will come into the separate question also and in a vital events also. Okay. Yes, sir. The second one is the registration of Vital. vital events. Events mean here just remember in India there is a registration of birth registration, marriage registration, okay, and Okay. death registration. Three main things in coming to vital events. If Okay. there is a separate question only about in short question is coming, please write about the vital events. Then you should write only three things: birth registration, marriage registration, and death registration. Okay. Okay, sir. So what is the time period for the for each and everyone? Birth registration should be within 21 days. Death registration also should be 21 days. Okay. Okay. Marriage uh, marriage ka I don't remember. Okay, about marriage I will tell you. Okay, Because marriage I think is within 3 months. So what is the basic thing with this with those records? We can understand how many births occur in our country, how many deaths occur in our country, and with this data we can elaborate more things. Death due to the what diseases, किस बीमारी की वजह से डेथ हुआ है, ठीक है, या प्री कितने बच्चों मतलब प्रीन्यूटल डेथ कितना हुआ है, या कितनी वोमेन्स का डेथ एनेमिक वजह से हुआ है. So with this registration system we can find out the whole sir. whole things about our country. Okay, Okay, sir. so you are only here and I can teach you regularly. Understood this thing? Then Yes, sir. then third one is coming sample registration system. The screen is not clear. This third part is the sample registration system. It is called SSR. SSR is also it's coming in the short notes. SRS. Okay, sample registration system. Okay, sir. So this registration system is uh, uh, done by state on the state level. Okay, Okay, sir. for what purpose? So simple registration system, there is a birth and death registration at the state level, Okay, sir. and it is a of course is a dual record system, because here we can consider about all the things like death, what cause, what is the main reason for death, neonatal death, geriatric death, all we can here notify. And the next one is a notifying disease. Notifying disease, like yeah, here now we are separating the thing. Notifying disease, like last 2 3 years we have हम लोग पास कोरोना था. तो नोटिफाइंग डिजीज मतलब कोरोना के कितने मरीज हुए, कितना उनसे डेथ हुई, कितना हमने रिकवर किया. तो विद दिस डाटा वी कैन दिस कॉल्ड द नोटिफाइंग डिजीज. ओके, Okay, आइदर okay, ये तो एक मतलब कोरोना अभी एक वो हो गया ना कि दिमाग में आ गया सबके, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया. अदरवाइज इसी तरह हम लोग
बहुत से डिजीज का नोटिफाई कर सकते हैं। जैसे कहीं पे इसका आपका टीबी से कितनी डेथ हो रही है, या जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे लंग्स डिजीज की वजह से कितने पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है, या कहीं जो पोल्यूशन में दिक्कत आ रही है उससे हमारे पास कितना एस्थमेटिक पेशेंट बन रहे हैं। क्योंकि दोज आर थिंग्स अनफॉर्चुनेटली वो हमारी कंट्री को ही इफेक्ट करते हैं, बट छोटी छोटी चीजें हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा जितना जितना प्रॉब्लमेटिक होगा, जितने लोगों को सहूलियत नहीं, मतलब जितने लोग उससे बीमार होंगे, दैट मीन हम हमारा कंट्रोल ठीक नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ओके। वाई ऑलवेज ऑलवेज वी आर गिविंग पे अटेंशन ऑन द नोटिफाइंग डिजीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, हम रोड एक्सीडेंट आप जो हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं वो काउंट काउंट किए जाते हैं कि किस हाईवे पे कितना एक्सीडेंट हो रहा है। अभी बीच में, मतलब अगर आप न्यूज या सोशल मीडिया पे, आपको बीच में एक चीज हुआ होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे क्यों इतना गाड़ियों का, मतलब गाड़ियां पंचर हो रही थी, ठीक है, यस दैट सर। इज द कॉज। तो उसका कॉज फाइंड आउट किया, या बहुत से ज्यादा एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे थे। ओवर स्पीडिंग इसीलिए मना की जाती है कि इस हाईवे पे जो लिखी जाती है वो इसीलिए, क्योंकि वो उस हिसाब से बनाया जाता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट और डेथ होने के चांसेस कम हो, ठीक है। तो दैट समथिंग कॉल्ड नोटिफाइंग डिजीज, ठीक है। सबसे अच्छा, अच्छा दूसरा, सबसे अच्छा रिकॉर्ड कौन सा, ओके, नेक्स्ट हेडिंग है एक्चुअली हॉस्पिटल रिकॉर्ड, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, ठीक है। ओके सर। तो अभी सबसे मेन क्या है कि हम हॉस्पिटल रिकॉर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड, बिकॉज आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, कि कितने डेथ हुए, कितने बर्थ हुआ, कितना आपका कौन सी डिजीज के। बट इसका एक ही ड्रॉबैक है कि आप सिर्फ मतलब आइसबर्ग फिनोमेना के हिसाब से आप सिर्फ टिप ऑफ द जो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों को ही जान पाएंगे, आप रूट कॉज में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से। जैसे अगर एक जगह से होगा तो आपको पता है कि इस एरिया में ये चीज हो रही है। हॉस्पिटल में पेशेंट पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, तो इतने लोग अपना रिकॉर्ड सही देते हैं नहीं देते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, बट हियर इट इज ड्रॉबैक ओनली दिस कि आप सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग के पेशेंट ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। सर तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में जितने भी डेथ्स होते हैं वो सारे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं वो जो रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है या फिर कुछ, तो वो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में नहीं जाते हैं, तो नहीं ये जैसे, टोटल हो पाता होगा ना ठीक है, फिर। इसे वो आ गया आपका इसमें ना, नोटिफाइंग डिजीज, अब वो उसका एक दूसरा रिकॉर्ड होगा हॉस्पिटल रिकॉर्ड में जो वही आएंगे। ये इसलिए तो उसका एक ड्रॉबैक है कि आप सिर्फ ऊपर की चीजों, वो तो उन्हीं लोगों का पता चल पाएगा ना जितना हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट आए, पेशेंट जो यस। हमको थ्योरी बताएगा, ठीक है। अदरवाइज आप बाकी चीजों की वजह से किस वजह से डेथ हो रही है वो तो आप नहीं बता कर पाओगे, ठीक है। तो इसका एक ही ड्रॉबैक है कि हम उसमें जो है सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग के ही डिजीज फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और दिक्कत करता है कि एडमिशन पॉलिसी वेरी टू वेरी हॉस्पिटल। अब देखो फैक्चुअल तो थिंग यही है कि हॉस्पिटल अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए गलत, मतलब हर चीज को नोटिफाई नहीं करता है। और दूसरा भी इंश्योरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से पेशेंट्स का इंश्योरेंस में डायबिटीज हाइपरटेंशन नहीं होता है, ठीक है। अब हॉस्पिटल में हम भी नहीं मेंशन करते हैं क्योंकि फिर उसका अप्रूवल डिनाई हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस उस पेशेंट को कुछ हुआ और उसकी डेथ हो गई तो हम मिस कर गए ना कि उसको डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी था। उसको तो हम सीधा लिख देंगे हार्ट अटैक या किसी और वजह से या दवा रिएक्शन, बट जो उसका एक कॉज था वो तो मिस हो गया ना। यस सर। तो ये सब उसके थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अदरवाइज बेस्ट जो है आपका वो सिंपल ये हॉस्पिटल रिकॉर्ड है, ठीक है। डिजीज रजिस्ट्रेशन, वो वही जो आपका नोटिफाइंग डिजीज हो गया उसी का एक पार्ट है कि डिजीज, जैसे किस डिजीज से कितना किस डिजीज से कितने आदमी हमारे पास आ रहे हैं, किस एरिया से आ रहा है, ठीक है, कौन सा यस। पेशेंट क्या हो रहा है, तो इसमें ये लिखना है वाइटल इवेंट्स में। मैं मोटी मोटी हेडिंग्स आपको सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूँ, नोट तो मैं आपको लेटर में शेयर कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको अपने से ही लिखना है इसके बारे में, ठीक है। अदरवाइज आप पूरी किताब का नोट नहीं लिख सकते हैं। यस सर। ठीक अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपको एक एमआरडी के बारे में पता होगा, मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है, है। यस सर। रिकॉर्ड रिकॉर्ड लिंकेज। अच्छा, मेडिकल रिकॉर्ड हम लोग क्यों लिखते हैं? सर जो भी उसकी हिस्ट्री वगैरह होती है या फिर पहले क्या है क्या नहीं है, जो भी उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, हम्म, तो वो हम मेडिकल रिकॉर्ड्स में लिखते हैं ताकि उससे पता चल जाए कि हाँ हम्म।
मतलब कोई ठीक। न्यू डिजीज है या फिर कोई न्यू डायग्नोसिस है या फिर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर उसके जीन से कोई मतलब पहले भी घर में या फिर किसी को हुआ है उसके पेरेंट्स को है तो वो सब हमें से है। That- तो जब अच्छा दूसरा इस आप नोट नहीं कर सकते अगर अपने दिमाग में, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि रिकॉर्ड लिंकेज, वो सीधा पूछता है कि व्हाट इज एमआरडी, ठीक है। यस सर। प्लीज राइट अबाउट द एमआरडी, तो मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में आपको वो लिखना होगा, ठीक है। यस सर। दूसरा एपिडेमिकल सर्वेलेंस, द सेम, आपको बता दिया कि नोटिफाइंग डिजीज में ही एपिडेमिकल सर्वेलेंस, लाइक जैसे हमारा गवर्नमेंट की तरफ से सर्वेलियंस होता है, जहाँ जो पैंडेमिक एरिया होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा डिजीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ का एक सर्वेलियंस होता है। तो उस सर्वेलियंस के लिए उसको बोलते हैं एपिडेमिकल सर्वेलियंस, ठीक है। ओके सर। इन्वायरमेंट हेल्थ डाटा द सेम, आई डिस्क्राइब, एक्चुअली मैं कंबाइल कर दिया, और ये थोड़ा अलग अलग से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा नंबर के लिए, ठीक है, हेडिंग दे करके। इन्वायरमेंट हेल्थ में वही कि हमारा इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, हमको मतलब कहाँ से कितने इन्वायरमेंट की वजह से कितनी डिजीजें हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे विंटर आता है, दिल्ली में पूरा पोल्यूशन हो जाता है, उससे एस्थमेटिक पेशेंट बढ़ जाते हैं, जो पुराने सीओपीडी के पेशेंट होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है, या ये तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपका एरिया क्लीन नहीं है, फिर वहां से दूसरी पेंडेमिक डिजीजें होती हैं, या जैसे एरिया क्लीन नहीं हुआ, सर्वेलियंस, ये आपका साफ सफाई नहीं हुई, या आपके एमसीडी या जो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने सही से दवा का छिड़काव नहीं किया, तो आपका उसमें डेंगू मलेरिया ये सब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और उसमें एक पूरा आपका आता है पॉपुलेशन सर्वे, ठीक है। इसका यस सर। बिग बड़ा क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा, बट आपको, ठीक है, इसमें पॉपुलेशन सर्वे में क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का कितना, क्या हेल्थ स्टेटस है, क्या हेल्थ इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, क्या मतलब उन वो एक्चुअली में ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ताकि जो हमारे, ठीक है, जो लोग हैं वो उनको कितना, मतलब उनके में कितना वो उनकी मॉर्बिडिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, एनीमिक स्टेटस क्या है पेशेंट का, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक क्या उसका स्टेटस चल रहा है, इसमें ये सब के बारे में लिखना है, ठीक है। और ये हो गया आपके सारे वाइटल इवेंट्स, ठीक है। तो अगर वो जो पिछली बार क्वेश्चन था, आई थिंक आपको वो क्वेश्चन अब क्लियर हो गया कि प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द डेमोग्राफी एंड इट्स वाइटल इवेंट एंड वाइटल इवेंट इम्पैक्ट ऑन डेमोग्राफी। यस सर। और ये जो आपको क्या नाम है, सिग्निफिकेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, ये भी अभी मैंने कवर किया। आप बताइए कि इसमें क्या लिखेंगे अगर बाई चांस आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। प्लीज राइट डाउन अबाउट द सिग्निफिकेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल स्टेटस। तो वाइटल स्टैटिक, सर अगर रिकॉर्डिंग का पूछेगा तो ये जो रजिस्ट्रेशन हो गया वाइटल इवेंट्स का वो लिख सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज लिख नहीं, सकते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स लिख सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड का ठीक लिख है। अब सकते हैं। इसमें क्या होगा कि स्टैटिक्स में आपके, मैं आपको तीन चीजें बता देता हूँ। ये आएगा सबसे इसमें डेमोग्राफी, ठीक है। अगर स्टैटिक्स पूछेगा, यस सर। ठीक है, स्टैटिक्स में तीन आएगा, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एंड सोशल स्कीम। ये तीन चीज मेन लिखनी है उसमें, ठीक है। डेमोग्राफी में आपका सेंसेक्स डाटा, ठीक है, डेमोग्राफिक फिनोमेना, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, उसका मूवमेंट एंड एजुकेशन लेवल। इकोनॉमिक में सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में लिखना है, ठीक है, यस लाइक सर। कंजप्शन ऑफ देयर टोबैको, डाइटरी फैट, डोमेस्टिक कोल, सेल ऑफ ड्रग एंड रेमेडीज, इंफॉर्मेशन पर कैपिटा इनकम, वही सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में लिखना है, ठीक है। एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस की दो, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के बारे में। एक्चुअली में ये वाला लाइन इंटरनेशनली है, इंडिया में इतने लोग मेडिकल इंश्योर्ड है नहीं, बट डेवलप्ड कंट्रीज में गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी कर रखी है, सभी को वो मेडिकल एड देती है, ठीक है। ओके।
सेंसेक्स के बारे में आपको मैंने बता दिया, एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पॉलिसी। तो आपका ये जो फर्स्ट चीज, फर्स्ट वो था, क्या नाम है, टॉपिक आपके इसमें, डेमोग्राफी, वाइटल इवेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल सेंसेक्स, ये चीजें हमने कवर कर ली। ठीक है। ओके आपका नेक्स्ट कोर्स के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर आएगा हेल्थ सिनेरियो ऑफ इंडिया। ठीक है। और आपको मैं ये भी आज खत्म ही कर दें, क्योंकि इसमें 2-3 लेक्चर हो गए, इनके हिसाब से खत्म करना तो ये आता भी नहीं है, तो हम आपको ही बता देते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है, ये वाला, इसमें 3-4 चीजें हैं। तो जो ये था नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है। यस सर। ताकि नहीं, इसमें आपको मैं छोटे छोटे जो चीजें बताऊंगा। ठीक है, सर तो वो इसके अभी बता देते ये आज आज के टॉपिक के वो सारे आप हैं। आज शेयर करोगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैं मैं अभी इस सारे, मुझे कल या परसों टाइम मिलेगा, मैं आपके जो कोर्स का ये है, क्या नाम है, मेरे पास फॉर्मेट है, जैसे डेमोग्राफी और वाइटल स्टैटिक्स का एक पूरा पीडीएफ बनाऊंगा। ठीक है, अच्छे से, मतलब वो फोटो थोड़ा सही से खींचना पड़ेगा, और अच्छा। क्योंकि 2-3 किताबों से मैं मिक्स करूंगा। ठीक है, ताकि उसमें आपको चीजें अकॉर्डिंग टू आपके कोर्स मिलते चले जाएं, अदरवाइज आप खोजते रह जाओगे कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है। दूसरा यस आपका सर। टॉपिक है हेल्थ एंड सिनारियो ऑफ इंडिया। तो इसका जितने भी पेजेस का वो बनेगा, पीडीएफ बनेगा, वो मैं मोटी मोटी चीजें आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके। एक सेकंड रुकना, मैं नेक्स्ट आपका है, क्या नाम है, हेल्थ सिनारियो ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें मेन चीज ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो ये है, क्योंकि पॉलिसीज वगैरह आप डिटेल में लिखानी पड़ेंगी, मतलब थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। इसका एक सबसे छोटा वाला पार्ट है नेशनल 5 ईयर प्लान। पता है नेशनल 5 ईयर प्लान क्या है? हेलो। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। 5 ईयर प्लान, नो सर। नेशनल 5 ईयर प्लान। अच्छा, पहले हमारे पास क्या था, प्लानिंग, वो था ना, नीति आयोग। यस सर। अ, नहीं, पहले था हमारा प्लानिंग कमीशन। ठीक है, यस सर। जिसको इस गवर्नमेंट ने 2015 में कन्वर्ट कर दिया, क्या नाम है, नीति आयोग में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। यस। तो इसका काम था सब चीज की प्लानिंग करना, ऑल ओवर इंडिया में हर एक चीज के लिए। उसी का एक पार्ट है 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है। यस सर। तो 5 ईयर प्लानिंग में क्या था, हर हर एक प्लान जो था वो 5 साल के लिए बनाया जाता था, कि हमें, हमारा ये गोल है। ठीक है, हमारा यस ये सर। टारगेट, टारगेट एक रखते हैं, गोल करते हैं, उसको कितना अचीवमेंट करते हैं। ठीक है। इस यस। प्लान के हिसाब से कंट्री का पूरा ढांचा तैयार होता था। ठीक है। इसमें क्या था, फर्स्ट था कंट्रोल और एरिकेशन ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। हमने हमने ये 5 ईयर हेल्थ के हिसाब से, हर एक चीज का 5 ईयर प्लान होता है, पर हेल्थ वाले पार्ट से आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें मेन ये था कि हमको डिजीज को कंट्रोल करना है, और उसको जो क्या नाम है, जो टारगेटेड है, जैसे हमारा पोलियो टारगेटेड था कि हमें एरिडिकेट करना है, तो उसी प्रोग्राम को हम क्या नाम है, आगे बढ़ा रहे थे, कि इतने से इतने साल में ये चीज खत्म करनी है। तो पोलियो तो ऑलमोस्ट हमारा भी खत्म हो गया। ठीक है। यस सर। दूसरे पॉइंट में हम ये रखते थे कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज देनी है। ठीक है भाई, यस
किसी वो फॉर एग्जाम्पल मतलब किसी से भी देना, चाहे आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर से दीजिए, सेकेंडरी से दीजिए, टर्टियरी से दीजिए। हमारा उसमें एक टारगेट 5 ईयर प्लान का टारगेट था कि हम सबसे पहले तो जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको कंट्रोल करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। दूसरा ये था कि हम बेस्ट हेल्थ देंगे टू आवर पॉपुलेशन, ठीक है। और उसी के एक पार्ट का था पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। ओके। और तीसरा उसी में एक था कि डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ मेन पावर रिसोर्सेज, और हम हेल्थ पावर के अपने रिसोर्स जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये यस। होता है 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है। और इसका एक छोटा सा आपका आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो आप अब वही लिखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, कंट्रासेप्टिव है, जो भी यूज है कंट्रासेप्टिव ज्यादा यूज के लिए हम लोगों को बताएंगे, ठीक है। अच्छा। और ये चीज खत्म हो गई। तो एक क्वेश्चन आपका आता है, क्या नाम है, इसमें जो है 5 ईयर प्लान समझ में आ गया, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। नोट्स में शेयर कर दूंगा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि ये सर। लिखने के लिए आपको एग्जाम में 7-8 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। तो इसमें कुछ लिखना नहीं, नेशनल 5 ईयर में तो अभी आपको अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी समझ में आ गया, अगर वहां पे आता शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा कि राइट अबाउट द नेशनल 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ यही 4-5 चीजें बतानी है। सबसे पहले जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज थी उनको हमें ये करना है, खत्म करना था। पॉपुलेशन कंट्रोल भी इसी में आता है। गुड हेल्थ सर्विसेज, मतलब हेल्थ सर्विसेज जो है वो हमें अपने कंट्री के पीपल को देनी है, ठीक है। और हेल्थ के रिसोर्स जो है वो मेंटेन करने हैं। इसमें ये 4-5 लाइन ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। नोट शेयर कर दूंगा, उसमें से आपको अगर लगेगा कि और चाहिए तो हम आप लिख सकते हो, बट बेसिक बेसिक 4-5 चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। ओके सर। अगला इसमें एक क्वेश्चन है आपका, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ पॉलिसी जो है आपकी बेसिकली गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। हम कुछ प्राइवेट भी करते हैं। नेशनल पॉलिसी जो थी वो हमने सबसे पहले बनाई थी, क्या नाम है, पॉलिसी ऑफ एंड नेशनल इन 1983, और रिवाइज किया था उसको 2002 में, ठीक है। सर। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी इट इज आल्सो केम इनटू द 5 ईयर प्लान, ठीक है। ओके। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। लास्ट हमने रिवाइज किया है इसको 2017 में, ठीक है। द मेन एम ऑफ द health policy is inform, clarify, strengthen, and prioritize the role of government in shaping health system and its all dimension। नेशनल हेल्थ पॉलिसी मतलब हम अभी अभी लास्ट लेटेस्ट पॉलिसी कौन सी चल रही है इंडिया में लेटेस्ट पॉलिसी। एज पर गवर्नमेंट? मोदी जी ने चलाया है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके अंदर 5 लाख का हम वो दे रहे हैं ना, तो बेनिफिट दे रहे हैं पीपल्स को, जिसमें सर्जिकल और मेडिकल दोनों है, ठीक है। ये अपडेटेड है, ये लास्ट आपको गवर्नमेंट के थ्रू एक पॉलिसी चलाई जा रही है नेशनल, उसका नाम क्या है, तो वो भी इसी के अंदर आती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर ही आती है, ठीक है। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है
बेसिक गोल ऑब्जेक्ट आपका यही कि हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम द इम्पैक्ट ने इस जो है इसका हमें उसका यूज कैसे करना है, मुझे सब तक वो पहुंचनी चाहिए, सब कोई को मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका मेन मेन गोल है। हेल्थ प्लानिंग, आप उस लेक्चर में थे जिसमें मैंने ये सब बताया था आपको, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्टियरी हेल्थ केयर के बारे में? सर सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने नहीं थी, बट लास्ट में आपने थोड़ा बस बताया था ना। पूरा हाँ हुआ ठीक, जैसे बताया। ठीक है, कोई बात नहीं। वो अगले वो फिर से मैं रिपीट करूंगा आपका इसमें, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। ठीक है, वो सब उसी जो आपके कोर्स में है, क्योंकि उसमें 3-4 चीजें यही सब पूछी हैं कि आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है, इंटीग्रेशन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम इन डेवलपमेंट कंट्रीज क्या है। ठीक है, एक बार मैं उसको अपनी दूसरी नोट से आपको क्लियरफाई कर दूंगा। तो आपका अभी 2 टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गए। ठीक है, एक तो आपके डेमोग्राफी वाले पार्ट, ठीक है, यस सर। एंड हेल्थ केयर सिनारियो ऑफ इंडिया। इसमें 3-4 चीजें ही पूछी गई हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ इसमें एक मेजर टॉपिक बचेगा आपका, हेल्थ सिनारियो ऑफ इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपको मैंने अभी एक सिर्फ ऑटोग्राफ मतलब रफली समझा दिया है। इसका डिटेलिंग जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी और पॉपुलेशन पॉलिसी का नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिखा दूंगा। ठीक है, ओके ये सर। होने के बाद ये होने के बाद आपका नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट वो होगा, क्या नाम है, क्लास, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की होगा। इसको मैं एक ही क्लास में 2 घंटे की लेके खत्म कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता दूंगा ये। ठीक है, और जैसे ठीक ही है। लेक्चर खत्म हो जाएंगे, मैं आपके टॉपिक वाइज, ठीक है, अपने नोट्स पीडीएफ बना के सीमा को शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके ताकि सर। सभी सभी को मिल जाए, क्योंकि कोई आता भी नहीं है। तो और कुछ पूछना है अभी आपको इसमें, क्योंकि नो सर, नोट्स तो लूंगी मैं। नोट्स तो दे देंगे, नोट्स की कोई बात नहीं। नोट्स तो मैंने बोल दिया कि मैं एक पूरी पीडीएफ बना के बाद में आपको दे दूंगा। ठीक है, सर तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाइटल इवेंट्स पे अलग आते हैं, वाइटल स्टैटिक्स पे अलग आते हैं, वाइटल इसलिए इवेंट्स पे मैं जो आते बहुत हैं आपकी। मैं इसीलिए नोट्स की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं उसमें जब मैं आपको दूंगा तो उसमें सब कुछ मिलेगा। अब आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन जो हैं आपके, ठीक है, यस सर। ऐसे आते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वाइटल इवेंट? ठीक है, यस सर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इन हेल्थ मैनेजमेंट? ठीक है, यस सर। तो हेल्थ मैनेजर मतलब हेल्थ के, तो क्या क्या उसके फायदे हैं, उससे हम क्या क्या हेल्थ में यूज कर सकते हैं, ये सब आपको उसमें पूरा लिखना है। ठीक है, और उसी में और मतलब बड़े क्वेश्चन में से, या फिर उसी का और करके आता है कि डिफाइन द कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, डिस्कस हाउ ए कम्युनिटी प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। तो इसमें भी आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेंट के बारे में वही सब लिखने हैं कि जो कम्युनिटी में क्या क्या, जैसे हम क्या करते हैं, फिर उसी वाइटल इवेंट में आना पड़ेगा, हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम, बर्थ। क्योंकि क्या होगा, अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेंट अगर कोई अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन कराएगा ही नहीं, डेथ रजिस्ट्रेशन कराएगा ही नहीं, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएगा ही नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, यस सर। ओके। दैट इज द रोल। तो कुछ चीजें हैं जो आपको वहां पे खुद से लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आपको उसके टॉपिक से नहीं मिलेगा, बट रिलेटेड हमेशा मिलेगा। ठीक है, दूसरा जैसे उसके बाद आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, सिद्धा यूनानी मेडिसिन। हाँ, अच्छा, ये आपका आएगा उसमें। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा ना उसमें आ जाएगा। ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पता है इंडिया के? नो सर। अरे आई कैसे? थिंक ये डिप्लोमा में पढ़ा था सर मैंने जब एमएलटी कर रही थी।
तो उसमें था, बट वो स्लिप कर रहा है माइंड से। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब ये हो गया ना, हम जो बच्चों को कैसे इम्यूनाइजेशन करते हैं। यस सर, बीसीजी वैक्सीन सबसे, वगैरह का भी बीसीजी देते हैं। जैसे वैक्सीन देते हैं ना, बीसीजी की, यस सर। पल्स पल्स पोलियो की, हेपेटाइटिस की, ठीक है। यस सर, ये तो पढ़ा है बट वो रिवाइज नहीं है। कोई नहीं, तो वो नोट्स में दे दूंगा आपको, ठीक है, कि इम्यूनाइजेशन के बारे में क्या क्या लिखना है। और एक्यूपंक्चर एंड प्रेशर, ये आपका यूनानी ये एक्चुअली में फिजियोथेरेपी से क्वेश्चन है ये। एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर, वो जो उससे करते हैं ना, मस्त क्या कहते हैं इसको? अरे इसके सेंटर्स होते हैं ना, एक्चुअली मुझे भी इसका आइडिया नहीं, मैं बता दूंगा इसके बारे में। और फिर अगर आपको जैसे कुछ क्वेश्चन, एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप या तो जनरली लिख सकते हो। अब आशा वर्कर्स के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ठीक है। यस ये शॉर्ट सर। क्वेश्चन, आशा वर्कर्स, आईसी एक्टिविटीज, मोर्टेलिटी, ये तो मतलब जैसे 5 चीजें हैं, 4 आपको लिखनी है, 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। यस सर। 1 2 3 4 5, अब 5 में आपको सारे पे लिखना है। तो लिख तो रहा है, क्वेश्चन देख रहा था मैं, नहीं। जैसे आपको 8 चीजें दी गई, 4 के बारे में लिखना है, तो अब सीधा यूनानी मेडिसिन तो आई थिंक आप ऐसे भी लिख सकते हो। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक्यूपेंचर प्रेशर, ये थोड़ा सा, अगर आप ये 2 नहीं लिख सकते, ये 3 तो आप लिख ही सकते हो। देखो आशा वर्कर, ठीक है, आईसी एक्टिविटीज एंड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी आपको बता दिया, ठीक है। आशा में नेक्स्ट उसमें प्रोग्राम जब बताऊंगा तो उसमें आ जाएगी आपकी, ठीक है। या क्वेश्चन पेपर से भी देख देख के मैं कुछ चीजें बता दूंगा, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके। अब अभी जो आपका बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में जो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। राइट ए डिटेल नोट ऑन द NHRA, नेशनल रूरल मिशन हेल्थ मिशन, ठीक है। ओके। आइदर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो मैं अभी आपको बता रहा था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, कि हमारे इंडिया में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है। ये देखो ये बड़े क्वेश्चन, ठीक है। यस तो सर। ये आपको जो नोट दूंगा उसमें से आपको याद करके थोड़े थोड़े करके लिखने हैं, ठीक है। ठीक अभी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिटेल नोट अबाउट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, आल्सो एक्सप्लेन द, मतलब अभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अगले उसमें लेक्चर में ये आपका, कि और उसके बाद आपको इसके बारे में बताना है, नॉन वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है, जो आपकी डेंगू और मलेरिया और इसके ऊपर बनाए गए हैं, उसका है, ठीक है। यस सर। ओके। इम्प्लीट कैसे करते हैं उसको, क्या करते हैं, वो देखिए लेक्चर में वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो नोट्स में आप, मैं आपको समझा दूंगा, आप उसको पढ़ के लिख सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। मेरी नोट थोड़ी शॉर्ट है, नेक्स्ट जिसका मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। अब उसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन दिया, आइदर यू कैन डिफाइन द डेमोग्राफी, आल्सो एक्सप्लेन द वेरियस सिस्टम इन्वॉल्व इन डेमोग्राफी। तो ये तो आपको पूरा डिटेल दे दिया है मैंने, डेमोग्राफी की डिफिनेशन, डेमोग्राफी की साइकिल और वो सब, ठीक है। यस सर। और फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स के लिए आया है, राइट ए डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन द फॉलोइंग 7 मार्क्स विद सेंसेक्स पे आया है, ठीक है। लेवल ऑफ केयर, सेंसेक्स मैंने बता दिया, लेवल ऑफ केयर वही प्राइमरी, टर्टियरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। यस सर। फिर नेशनल 5 ईयर प्लान आपको बता दिया, तो इसमें आपको वो 4 5 चीजें नेशनल 5 ईयर प्लान में लिखनी, ठीक है। एंड यस सर। इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO होता है, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक ये आपका एक पेपर था। अभी दूसरे पेपर में देखिए सारे, जैसे देखिए शॉर्ट नोट एनी ऑफ डेमोग्राफी, मुखर्जी कमिटीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, बट नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपको मैं डिटेल दे दूंगा, ठीक है, यस सारी सर। कमिटीज के बारे में। फिर आ गया नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में लिखिए, एक्शन प्लान ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। रोल ऑफ होलिस्टिक अप्रोच इन ट्रीटमेंट, ये तो खैर वो नहीं है। अब फिर से आपको पूछा है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताइए, ठीक है, क्या रोल है इसके, कैसे हम क्या करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसका तो मैंने आपको बहुत डिटेल दे दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। या हाउ इज हेल्थ केयर सिस्टम इज डेवलप कंट्रीज डिफरेंट फ्रॉम द डेवलप कंट्रीज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यस सर। ये इसमें आपको सारा सब कुछ डिटेल लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंट्रीज में क्या है, वहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम है, डेवलप कंट्रीज में। इसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिल सकता, ये आपको अगर छोड़ दे तो ज्यादा बेटर है, मतलब एग्जाम में इसके सिवा कोई और क्वेश्चन करना है तो
आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे था आपका ऑल 5 क्वेश्चन करने थे, 6 क्वेश्चन दिए गए थे, तो कोई एक आप छोड़ सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन कभी मत छोड़ना, क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स में फिर से वही आ गया, नेशनल 5 ईयर प्लान लिखिए, ठीक है, एक्शन टेकन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट प्रोवाइड द हेल्थ ऑफ सिटीजन ऑफ उत्तराखंड, मतलब ये स्टेट हेल्थ पॉलिसी के बारे में लिखना है, ठीक है, उत्तराखंड से मतलब नहीं है, वो स्टेट हेल्थ पॉलिसी सबकी सेम होती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट में था, फिर से शॉर्ट नोट्स आया दो का, सेंसेक्स, राइट अबाउट द सेंसेक्स इन इंडिया, ठीक है, रोल ऑफ एंड रोल इन हेल्थ केयर, वाइटल वाइटल पैरामीटर्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे से वो नाम लिख करके दो दो लाइन के बारे में लिखनी है कि सेंसेक्स होता है, ठीक है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, वाइटल रजिस्ट्रेशन होता है, SSRI होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आपको वो करना है, ठीक है। सर। क्योंकि आप जब भी पढ़ना ना, मतलब एग्जाम के लिए या कभी भी, पूरी नोट्स एक साथ रटने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन पेपर 3-4 साल के पुराने निकाल लेना, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस के हिसाब से अपने मतलब नोट से क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करना, क्योंकि एक ही टॉपिक में आपके 4-4 5 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि अभी मेरा ये बाकी है, अभी मेरा ये बाकी है, अभी मेरा ये बाकी है, ठीक है। ओके सर। हम्म। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर ट्राई करना अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि दो दो तो आपके खत्म हो गए, ये 2 घंटे में, क्योंकि इनके हिसाब से 8-10 घंटे ही हैं। उसके बाद फिर कभी अगर बुलाएंगे तो उसके बाद में मेरे छुट्टी हो जाएगी, मैं 1-2 दिन की छुट्टी लेकर के ये पूरा एक साथ आपका वो PDF बना के मैं सीमा को शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर ट्राई करना, अगर आप सुनिए, क्योंकि आप अकेले अटेंड करते हैं, यस अगर सर। वो टाइम देते हैं आप नहीं अवेलेबल है तो मना कर दिए, बोलिए कि मैम टाइम चेंज कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम चेंज कर लूंगा, ठीक है। ओके क्योंकि सर। वो लास्ट लेक्चर होगा, आप अकेले अटेंड कर रहे हो, तो कम से कम आपके पास पूरा एक मटेरियल होना चाहिए। संडे आप कब फ्री रहते हो, संडे की नो किसी सर, और? संडे फ्री रहती हूँ, बट अब अभी कुछ हो गया था, इस वजह से मैं नहीं अटेंड नहीं नहीं नहीं, कर पाई। मैं वो नहीं पूछ, जनरली आप संडे, संडे फ्री रहती हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, जब भी ऑफ संडे होता है। आपको स्टीमर क्लास का टाइमिंग देंगे, अगर बाई चांस किसी भी अनफॉर्चुनेट रीजन से भी अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, आप उनको मना कर दें, क्योंकि आप ही क्लास में आते हो, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आता है वो कम से कम पूरा वो सीख ले, ठीक है। तो ओके सर। अगर आपको टाइम नहीं, आप मना कर देना कि मैं शेड्यूल कर दीजिए किसी और दिन, मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी और दिन। ओके सर। ओके चलिए। थैंक यू।